جو اہم نقطہ تھا وہ ظاہر ہے گورنر صاحب ایک بیان دے چکے ہیں کہ سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. ایک انتخابات کے ملتوی ہونے کا ایک یہ گردان شروع ہو گئی ہے. آئین بڑا واضح ہے کہ آئین کے اندر یہ گنجائش موجود نہیں کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں، لیکن ہمارے ملک میں آئین اپنی مزے، اپنی اس ثواب دید کے مطابق یا اپنی چوائس کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. جب دل کرتا ہے تو یہ بیان بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آئین میں یہ تو کہا ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں، نہ کراؤ تو اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے. جب اس طرح کے سیاستدان بیان دینے شروع کر دیں گے، جب سیاستدان جواز نکالنا شروع کر دیں گے کیونکہ آج ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں، تو کل جب کوئی دوسرا آئے گا اور وہ مہینے 2 مہینے نہیں، سال 2 سال 5 سال الیکشن ملتوی کرنے شروع کر دیں گے اور 10 سال کی حکومتیں چلیں گی، اس کو جسٹیفائی یہ کیسے کریں گے؟ تو ہم نے تھوڑا سا 2-4 چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں. ایک یہ کہ آپ کو دکھائیں کہ سیاستدان اس وقت انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے دلائل کیا کیا پیش کر رہے ہیں. بڑے مذائقہ خیز قسم کے دلائل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. اس وقت صورتحال کے مطابق جو آئینی وقت ہے وہ 90 روز ہے، اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 1988 میں سیلاب جب آئے تو انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے. اگست میں حالات ایسے نہیں تھے کہ انتخابات ہو سکے. اسی طرح جنوری میں انتخابات ہونے تھے سن 2008 میں، لیکن محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ایک اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی وجہ سے سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی. آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. یہ بات ان کو بھی پتا ہے. اب اگر میری یہ پوزیشن ہو، میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کیسی یہ ملک کے اندر کیا سارا سال الیکشن ہو، تماشا لگا رہا ہے الیکشن کا. میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، بلکہ ادارے اسٹیبلشمنٹ اور رپورٹ دیں گے اور الیکشن کمیشن ان کے مابین میں. کیا سمجھتے ہیں آپ انتخابات ابھی اس جو 2 صوبوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے 2 صوبوں کے نہیں ہوں گے. اور فری اینڈ فیئر الیکشن دیر شوڈ بی اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پروونشل اینڈ فیڈرل لیول کے اوپر. کانسٹیٹیوشن کی ایک ہول اسکیم ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے. یہ اپریل میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر اکتوبر میں جب باقی ملک میں ہوں گے تو یہاں بھی ہو جائیں. یہ سارے کے سارے پی ڈی ایم کی پارٹیز اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کہا نہیں ہوتے جی الیکشن سے، اور پھر ہنس بھی پڑے. یہی مولانا صاحب کبھی آئین کوٹ کرتے ہیں، کبھی قانون کی بات کرتے ہیں. یہ تمام لوگ، ان میں سے ایک لا منسٹر بھی تھے آپ کے، سیلاب اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت بھی تو الیکشن ملتوی ہوئے تھے. اور جب اگر کوئی دوسرا آئین کی کسی اس طرح کی شق کو اپنی مرضی سے موڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ابھی ملک احمد خان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کی اگر نہ کرائیں تو اس کے بارے میں لکھا کچھ نہیں ہے، اسی 2 دن پہلے اپنی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان لوگوں پہ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کرائی اس وقت. اگر کر دیتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. یعنی آپ کو چھوٹ جہاں کرتا ہے وہ غلط تھا جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین آپ کے ذات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آئین یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو 90 دن میں الیکشن لازمی ہے. وہ تو ظاہر ہے سزائیں تو اس نے تجویز نہیں کی کہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر سزا تجویز نہیں کی اس کا مطلب ہم نہیں کراتے، اس کا مطلب ہم اپنی سیاست کے مطابق جو کام کرنا چاہیں گے کر لیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری طرف آج کل جو آپ صحافی مجھ سمیت جو انفارمیشن یہ لیک کی جا رہی ہے یا شیئر کی جا رہی ہے، جو آپ سیاسی جماعتوں سے ملتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا، بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ الیکشنز نہیں نظر آ رہے. ذرا سنیے کہ یہ بات اب انکریزنگلی زیادہ ہونی شروع ہو گئی. جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروایا جائے. الیکشنز تو شاید نہ ہوں، اور وہی ہو رہا ہے. اب لگ ایسے ہی رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. جو بھی حکومت کرے گی اور جو سارے مل کے کریں گے، الیکشن تو مشکل نظر آ رہے ہیں دونوں صوبائی اسمبلیوں. یہ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ ڈیلے ہو جائے. بائی الیکشن کی یہ بات نہیں ہو رہی اسمبلیوں کے، صوبائی کے. جنرل الیکشن قومی اسمبلی کا کیسے آپ نے ڈیلے کر جو مینڈیٹ لینے کے لیے قانونی طریقہ کار ہے، آئینی طریقہ کار ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شاید الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا. حکومت کی خواہش ہے کسی طرح انتخابات کو ملتوی کرایا جائے. جواز سوچیں گے، کوئی چیز سوچیں گے، بالکل یہ چیز نوشتے دیوار ہے. الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ڈیجیٹل مردم شماری تک جو ہے اس معاملے کو لٹکایا جائے. الیکشن مجھے ہوتے نظر نہیں آتے اور اس بدقسمتی سے معاملہ پھر عدالت میں جاتا نظر آ رہا ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. جب
इलेक्शन में जाने से तो आइन तो बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है कि अगर असेंबलियां तोड़ दी जाएं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, लेकिन यहां पाकिस्तान में किसी को इलेक्शन अव्वल तो होते नजर नहीं आ रहे, और जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं, वो ये बातें बता रहे हैं आपको कि किस वजह से इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। वो दो मिसालें के माजी की देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इलेक्शंस के बारे में लिखा है कि इलेक्शंस होने हैं और अपनी मुकर्ररा मुद्दत में होने हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days आफ्टर द डिसोल्यूशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर्ड नो लेटर देन 14 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल्स। ये बड़ा वाज़ेह है कि बाय इलेक्शन का वक्त क्या होगा। अगर आइन को नहीं मानना, अगर अपनी मर्जी से फैसले करने हैं, अपनी सियासत को मद्देनजर रख के फैसले करने हैं, तो आइन तो फिर कल कोई भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। कितना आसान है ये, इन हमारे दोस्तों को ये समझ नहीं आती कि आज आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, कल कोई और अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। और ये तो वो लोग थे जो आइन और जमहूरियत के चैंपियन अपने आप को कहते थे, जो तो अब जमहूरियत के नारे मारते नहीं थकते, और वो आज इस तरह की चीजें बता रहे हैं हमें कि इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं। हमारे साथ फरूख हबीब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अब फरूख हबीब साहब, ये तो लग ऐसे रहा है, अब आपने बातें सुनी है सारों की, कि इलेक्शंस शायद ना हो, तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है इस बारे में? देखिए, कोई ऐसी मैं समझता हूं कि गुंजाइश है ही नहीं कि इंतखाबात ना हो। आपके ये इल्म में होना चाहिए कि जैसे ही आपको पता है कि ये आज पेशावर धमाका जो है वो हुआ है, उसके साथ ही जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसकी जानिब से एक तयशुदा बयानिया आगे बढ़ाना शुरू कर दिया गया। और उसके बाद आपने याद होगा कि ये कहा गया अभी तो शोहदा का खून भी जो है वो खुश्क नहीं हुआ, तो ऐसी बातें शुरू कर दी गई कि इंतखाबात जो है वो नहीं हो सकते, सिक्योरिटी की सूरत हाल आ गई। पंजाब में तो कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है, यहां पर तो कोई सैलाब भी नहीं है, यहां पर तो कोई आफत नहीं आई हुई। और खैबर पख्तूनख्वा तो हमारा वो सूबा है जो पहले दहशत गर्दी से पहले एक बार गुजरा है और वहां के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और इस हवाले से पहले से हम आगाह करते जा रहे हैं कि हाँ, लेकिन ये तो आप सारी वो बातें कर रहे हैं जो सारे कर रहे हैं ना। ये तो सब कह रहे हैं कि इस तरह के हालात नहीं है। मैं शाहिद उस्मानी साहब मेरे साथ मौजूद, रुक जाए फरूख साहब, एक सेकंड रुकिए, मैं शाहिद उस्मानी साहब से पूछ लूं कि आइन इस बारे में क्या कहता है। शाहिद उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं काशिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बताएं शाहिद उस्मानी साहब कि क्या अगर हुकूमत चाहे तो ये जो आइन में लिखा है कि नो लेटर देन 90 days आपको इलेक्शंस कराने पड़ेंगे 90 दिन के अंदर अंदर, क्या इसको मुलतवी कर सकती है हुकूमत, इलेक्शन कमीशन? देखिए, आइन में तो इसकी कोई प्रोविजन नहीं है इन द सेंस दैट 90 days में इलेक्शंस तो करवाने लाजमी है, लेकिन और कोई तरीका इस्तेमाल कर सकती है हुकूमत। फॉर इंस्टेंस इमरजेंसी। सर, इमरजेंसी तो वफाकी इलेक्शंस के लिए, अगर कौमी इलेक्शन हो उसके लिए तो हो सकती है। सूबाई इलेक्शन किस तरह फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत सूबाई इलेक्शन के लिए भी वो जो गवर्नर रूल का जो है ना, वो 234 जो है वो सेक्शन आर्टिकल वो इस्तेमाल हो सकता है। वो कह सकते हैं कि जी फर्ज किया पंजाब में हालात बहुत ही खराब हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सिविल वॉर सिचुएशन है, ये कोई ऐसी बात है, तो वो इस सूरत में वो कह सकते हैं। लेकिन हालात तो खराब नहीं है ना पंजाब में? है नहीं, वो नहीं है, लेकिन हो तो सकते हैं ना। अच्छा, वो अच्छा करते तो और बात है। सर, अब ये देखें, मेरी बात सुने, इस मुल्क में 2008 में इलेक्शन हुए, आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहिबा को उसी वक्त शहीद किया गया था। दहशतगर्दी की लहर थी इस मुल्क में, फिर भी इलेक्शन हुए। इस मुल्क में 2013 में इलेक्शन हुए। आप सिर्फ ये देखें कि 5 साल में कितने वाकयात दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए, फिर भी इलेक्शन। अब इस पंजाब अगर आप देखें, फिलहाल पंजाब के हालात पुरसुकून नजर आते हैं। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं। आप कह रहे हैं कि अगर साइया ने फैसला कर लिया तो फिर तो जो मर्जी कर लें, वो किसी चीज को भी बुनियाद बना लें कि जी मौसम अच्छा नहीं है तो इलेक्शन नहीं हो सकते, फिर तो ये भी एक दलील डाल देनी चाहिए इसके अंदर। जी देखिं, अभी जो पेशावर में हुआ है, एक नमाजी जमात में खड़ा हुआ और उसने अपना बेल्ट बांधी हुई और एक्सप्लोड हो गया। अब देखें कितने लोग मस्जिद में जाएंगे इसके बाद। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और वो इस चीज को बेसिस कोई बना सकती है, हुकूमत कह सकती है कि भाई ये हालात बहुत ही खराब है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन मुलतवी करने हो, 2 धमाके करा दें, तो इलेक्शन अगले 5 साल ना करें? जी देखिए, सिचुएशन ये है कि प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कर सकते हैं, लेकिन
वैसे तो एक आर्टिकल 254 तो है, वो ये कहता है कि अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि वो एक मुकर्ररा वक्त पे होनी है और वो मुकर्ररा वक्त पे नहीं होती तो उसकी वजह से वो कोई इनवैलिड नहीं होती, ये लिखा हुआ है। तो लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन अभी तो बहुत दिन है, 3 महीने तो बहुत दिन है सर। कहाँ दिन है सर? आज अभी असूली तौर पर इसका स्केड्यूल आ चुका होना चाहिए था, गवर्नरों को तारीखें दे दी होनी चाहिए थी कि केपी और पंजाब के इलेक्शन मुलतवी है, 2 हफ्ते के करीब तकरीबन हो चुका है। सो कोई वजह नजर, आज धमाका हुआ तो हम जो चीज 2 हफ्ते पहले हो चुकी होनी चाहिए थी उसकी बुनियाद आज बना रहे। देखें जी, धमाका हो गया, अब तो 2 सूबों में इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। देखिए, आइन ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन, आइन ये नहीं कहता कि किसी ने नोटिस भेजनी है या करना है, कुछ करना है। तो अब ये चीज तो किसी वक्त हो सकती है। तो अगर ये यहाँ पे तो गुड फेथ की बात है ना, अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए एक प्रोविजन है जो कि इस्तेमाल हो सकती है। अब वो कैसे होती है वो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन और तो कोई तरीका नजर नहीं आता, क्योंकि आइन तो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज में इलेक्शन होना लाजमी है। ये बात एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं कि आइन तो बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजिम है, लेकिन अगर बदनीयती हो तो उसके लिए कोई भी वजह बनाई जा सकती है। हाँ, एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मुकर्ररा वक्त के लिए तो नहीं है ना, ये तो हमेशा हमेशा के लिए है। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो इट कैन बी यूज्ड, पॉसिबिलिटी है इसकी। सो आप इसको, अगर इलेक्शन जो मौजूदा हालात हैं इसमें इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं तो लगेगा तो ऐसे ही कि अब्यूज किया जा रहा है ना, इनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक किसी इंसिडेंट के ऊपर आप बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दें। मतलब आप भी पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमने इससे बहुत ज्यादा खराब हालात देखे हैं इस मुल्क में। ये आपको वजह नजर आती है कोई? नहीं, देखिए, इसमें ये बात नहीं कर सकते। सिचुएशन इज कि अगर कोई करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, आप जानते हैं इस मुल्क को, जो आजकल हालात हैं हमारे यहाँ, कॉन्फ्रंटेशन का जमाना है और ऐसे जबरदस्त कॉन्फ्रंटेशन का जमाना है, और उसमें हर एक आदमी चाहता है, हर एक पार्टी। सर, बट आइन ये थोड़ी कहता है कि कन्फ्रंटेशन होगी तो इलेक्शन नहीं होगा, वो कहता है बस 90 दिन में इलेक्शन कराएं जी, बस। वो सही है इलेक्शन, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताया कि ये हो सकता है, लेकिन उसको चैलेंज किया जाएगा यकीनन कोर्ट के अंदर। कोर्ट में चैलेंज होगा, उसमें 3-4 महीने आर्ग्यूमेंट्स होंगी, अपील्स होंगी, वो तो होती रहेंगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी है, एक नुक्ता मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। कह रहे हैं एक नुक्ता मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। नुक्ते तो बहुत सारे हैं, फुल स्टॉप से वो बहुत सारे। सियासतदानों को सोचना चाहिए कि आज आप एक नुक्ता इस्तेमाल करेंगे, कल वही नुक्ता कोई दूसरा भी इस्तेमाल करेगा, फिर जाने क्या होगा, फिर किसी को किसी की जरूरत नहीं रहेगी एक्सटेंशनें देने की या अपॉइंट करने की। वो यही आपकी मिसाल देकर कहेंगे कि जनाब क्योंकि पहले भी हो चुका है तो हम इलेक्शन मुलतवी करने लगे, क्योंकि हालात खराब है। और हालात की खराबी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हालात की खराबी की फिर तारीफ तो हुकूमत खुद किया करेगी कि जनाब गंदम कम है, इलेक्शन मुलतवी, मौसम खराब है, इलेक्शन मुलतवी। ऐसी गलत मिसालें सेट नहीं होनी चाहिए।